Good morning, class. So, this is the last unit of our paper Supply Chain Analytics, and I hope that you have watched all the previous video that I have provided you from all the units like 2, 3, 4, 5, 6, and also 2 case studies uh, for this paper Supply Chain Analytics. And I guess those will be very helpful for your preparation as those questions are a crisp revision of the entire chapter. Similarly, for unit number 7 as well, I prepared one particular question, and that question completely covers whole of the unit. Okay. So for these videos will be helpful for your last minute revision. Okay. So I request you to watch these videos at least 2 to 3 times and have a proper and clear clarification on how to write and how to deal with each of the points asked in the exam. Okay. And you know, these questions that we are practicing will be for 12.5 marks. Okay. So let's get started. This is the last unit, you know. So the question may be like this. You need to evaluate the significance of the analytics. What is the importance of analytics in effectively managing the carbon footprints of the supply chain? Okay. Then you have to examine the importance or significance of quantifying. What is the importance of quantifying or accounting the carbon emission in the operations of supply chain? Also, you need to examine how analytics can be utilized to detect areas that require enhancement and also establish enduring practices. Okay, what are the practices that are going on nowadays? Okay. Also, you need to provide a case study of companies that have effectively utilized analytics to decrease their environmental impact in their supply chain. Although we have not covered this unit in the revision part, actually I prepared the video, but somehow there was the audio was not proper. That's why I have not uploaded that. So no worries. This video will be a comprehensive one. You will be able to cover the whole of the unit. Okay, by this question only, because this question covers, you see, just see this. Firstly, you have to give you have to show the importance of this analytics, importance of analytics, and how it can effectively manage the carbon footprints of the supply chain. Okay, then you need to examine the significance of, okay, how can carbon emissions be it can be, data analytics can be utilized and carbon emissions can be quantified. Okay, and then how can it be used to detect those hotspots areas where the carbon emission is the most in the whole supply chain. And also you need to give a sample example of a case study of the company which is greatly utilizing this. Okay, take care. Let's get started. Let's see how we can answer this question. So let's first start from the what is the significance of data analytics in managing the supply chain carbon footprint, है ना. supply chain carbon footprint में analytics का क्या काम है? तो सबसे पहले है कि आप carbon emissions जो आपकी कंपनी में हो रहा है ना supply chain में आपके, उसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो. ओके, अगर आप डेटा एनालिटिक्स यूज करोगे तो आप अपने कार्बन फुटप्रिंट को मेजर कर सकते हो. आप बता सकते हो कि ओके, even I am a metal company, even I am a steel company, still I am just मेरे ऑर्गेनाइजेशन से सप्लाई चेन में सिर्फ और सिर्फ इतना कार्बन फुटप्रिंट आ रहा है ना. तो आप इसको क्वांटिफाई कर सकते हो. ठीक है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग. ओके, दूसरा बेनिफिट है, यू कैन आइडेंटिफाई द एमिशन हॉटस्पॉट. कहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में क्या ज्यादा एमिशन हो रहा है या मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा एमिशन है, तो आप उस हॉटस्पॉट एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हो. ये फायदा है. तीसरा है, यू कैन ऑप्टिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा जो है कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल, रिसोर्सेज और कार्बन डाइऑक्साइड एंड और सब ज्यादा रिलीज होता है. तो आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि रूट ऑप्टिमाइजेशन अगर आप यूज करोगे, रूट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, तो आप अपने रूट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि किस जगह पे आपको जो है वो मतलब आप किस तरह से ऑप्टिमल कर सकते हो ताकि आपका फ्यूल कंजम्पशन भी कम हो जाए और इमिशन भी कम हो जाए. साथ ही साथ सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट, मतलब आप जो भी जो सप्लायर्स है जो सस्टेनेबली काम कर रहे हैं, जो ग्रीन व्हीकल्स यूज कर रहे हैं एंड ऑल दीज थिंग्स, तो आप उसको क्या कर सकते हो, उन सप्लायर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो और प्रमोट कर सकते हो सस्टेनेबिलिटी को, राइट.
उसके बाद है लाइफ साइकिल एनालिसिस। लाइफ साइकिल एनालिसिस कहने का मतलब क्या होता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होगी जिसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, उस प्रोडक्ट का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल देखा जाए कि इसको इसको मैन्युफैक्चरिंग करने में क्या कार्बन एमिशन हो रहा है, क्या इसको ट्रांसपोर्टेशन में हो रहा है, क्या इसको डिस्पोज ऑफ करने में कार्बन एमिशन हो रहा है। तो आप उस सारे मतलब पूरे उसकी लाइफ साइकिल को ये कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ज्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है या ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट है तो आप उसको ड्रॉप करके कोई ऑल्टरनेटिव निकाल सकते हो। तो दीज आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एनालिटिक्स इन मैनेजिंग द सप्लाई चेन कार्बन फुटप्रिंट। लास्ट है ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। यू नो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कहने का मतलब क्या है कि आप मेटल इंडस्ट्री जैसे है वो बिल्कुल एकदम से रिड्यूस नहीं कर सकती, बट दे कैन ट्राई, है ना, कि वो धीरे धीरे करके एक एक जगह करके दे कैन लाइक come with some substitute. Okay, so this way, these are the ways in which or these are the, you can say, the importance of using analytics, okay, in managing the supply chain regarding the carbon footprint. Okay, now we'll be discussing how can this, अभी हमने डिस्कस किया ना कि अगर आप एनालिटिक्स यूज करो तो आप जो है अपने कार्बन फुटप्रिंट को क्वांटिफाई कर सकते हो। तो अब सवाल ये उठता है क्वांटिफाई कैसे होगा, क्वांटिफाई कैसे होगा, है ना। तो क्वांटिफाई सबसे पहला तो बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है ना कि क्वांटिफाई 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 अगर आप कर दोगे, मतलब क्वांटिफाई मतलब अगर आपका कार्बन फुटप्रिंट, मतलब अभी आप जानते हो कि कार्बन फुटप्रिंट जो है उसकी अकाउंटिंग होती है ना, कि स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3 में कितना हो रहा है। स्कोप 1 इफ यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया है कि स्कोप 1 जो होता है वो क्या डायरेक्ट एमिशन, जो कंपनी से डायरेक्ट एमिशन, उनके डायरेक्ट प्रोडक्ट से जो एमिट हो रहा है उसको स्कोप 1 कहते हैं। स्कोप 2 जो और सारे प्रोडक्ट्स, स्कोप 3 मतलब उनके सारे सप्लायर्स और सारे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले जितने वेंडर्स हैं उनके वो सारे इंक्लूड हो रहा है, और उन सब से जो हो रहा है वो सारा स्कोप 3 में जाता है। तो इस तरह करके हम स्कोप वाइज करके सेगमेंट करते हैं और फिर उसको क्वांटिफाई करके अकाउंटिंग करते हैं। तो वही बात है कि अगर आप बेंचमार्किंग कर दो कि 50 से कम, जैसे हमने किया हुआ है ना अपना इसके लिए पेरिस एग्रीमेंट में किया हुआ है कि 1.5 डिग्री हमें पहुंचाना है, उससे कम करना है हमें कार्बन फुटप्रिंट, है ना, तो कार्बन एमिशन। तो इसी तरह करके कंपनीज के लिए भी अगर बेंचमार्किंग सेट कर दी जाए ना, तो ये इंडस्ट्री वाइज एक स्टैंडर्ड सेट की जाए तो क्या होगा कि बेटर कंपटीशन होगा, हेल्दी कंपटीशन होगा, और हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से ऐसे इंडस्ट्री है जिनको मतलब जिनसे ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट हो रहा है और ज्यादा वो मतलब उस पर फोकस करने की जरूरत है। तो इम्प्रूवमेंट का वो एरिया और जो हॉटस्पॉट एरिया है वो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो बेंचमार्किंग इज इम्पोर्टेंट। दूसरा है कि regulatory compliance. Regulatory compliance means nowadays actually SEBI and all these regulatory bodies, they have made compulsory for the companies that they have to be accountable for their carbon footprint. ठीक है, उनको नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालना, उनको बताना है कि उन्होंने कितना एनवायरमेंट को नुकसान किया या उन्होंने क्या क्या किया एनवायरमेंट के लिए। तो वो एक मतलब प्रॉपर उनको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट दे दी गई है। तो इस तरह का रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी जरूरी है। ठीक है, तीसरा हो गया स्टेक होल्डर ट्रांसपेरेंसी। स्टेक होल्डर ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि हर एक स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है, हर एक बंदा जो उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब वो मैन्युफैक्चरर जो उसको उस प्रोडक्ट को बना रहा है, वो वेंडर जो उसको ला रहा है, वो सप्लायर जो उसको दे रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर, वो ऑर्गेनाइजेशन जो उसको बना रही है, वो कस्टमर जो यूज कर रहा है, ये सारे बंदे जो हो गए ना, सारी पार्टीज जो हो गए ना, उन्हीं को कहते हैं स्टेक होल्डर। तो इन सारे स्टेक होल्डर्स में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इवन कस्टमर को पता होना चाहिए कि क्या इसको बनाने में, इस प्रोडक्ट को बनाने में इन्वायरमेंट का नुकसान हुआ, अगर हुआ है तो कितना हुआ है। ठीक है, सप्लायर को मतलब सप्लायर भी एक स्टेक होल्डर है। तो सप्लायर क्यों, वो जबकि वो आउटसाइड पार्टी है, बट फिर भी उसको भी इतना ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है कि वो बताएगा कि भाई ट्रांसपोर्टेशन में इतना कार्बन एमिशन हुआ, या हम जो व्हीकल यूज कर रहे हैं उसमें इतना हो रहा है, एंड एवरीथिंग। मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तभी तो कंट्रोल हो पाएगा, है ना। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे स्टेक होल्डर्स की, चाहे वो कस्टमर हो जाए, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो जाए, या कम्युनिटी मेंबर हो जाए, कि वो बताएं कि कितना ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन एमिशन इस प्रोडक्ट या इस पर्टिकुलर जगह पर हो रहा है, सो दैट इट कैन बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, तो दिस इज द रीजन व्हाई वी वांट द कार्बन एमिशन टू बी क्वांटिफाइड। ये रीजन है कि हम कार्बन अकाउंटिंग, कार्बन कैलकुलेशन ये सारा करने की कोशिश करें, ताकि हम बेंचमार्किंग कर पाए, रेगुलेटरी कंप्लायंस हो पाए, और ट्रांसपेरेंसी इसी से पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद हम क्यों कार्बन एमिशन कम करना चाहते हैं। एक तो आप सबसे पहला जानो कि सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। आप आने वाले जनरेशन को एक अच्छा बेहतर दुनिया दोगे जो आपको मिला है ना, ऐसे बेकार कर कर नहीं छोड़ना, है ना।
तीसरा क्या है कि आप जो है मतलब लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी लगा लो कि आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी दोगे, मतलब कि रिसोर्सेज पूरे डिप्लीट ना हो जाए, बिल्कुल, है ना? तो जो अभी वेदर कंडीशन आप देख रहे हो, जो वेदर चेंजेस हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब कार्बन एमिशन की वजह से हो रहा है ना? तो इस चीज को कम करने का है। उसके बाद आप इन्वायरमेंट और सोसाइटी को एक अच्छी लाइफ दोगे, फ्यूचर जनरेशन को अच्छी लाइफ दोगे, ठीक। साथ ही साथ सिर्फ इतना नहीं है, अगर आप ये सब सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड्स बढ़ोगे ना, तो एज अ होल आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होगा। कैसे होगा? आपकी कॉस्ट सेविंग होगी। पता है कैसे कॉस्ट सेविंग होगी? जैसे कि आपने अगर रूट ऑप्टिमाइज कर दिया कि किस रूट से आपका मतलब जो है कि शॉर्टेस्ट रूट कौन सा पड़ रहा है ना? तो आप क्या करो, फ्यूल कंजम्पशन कम करो, आपका खर्चा कम हो गया, आपकी कॉस्ट सेविंग हो गई। तो इस तरह से करके आप कॉस्ट सेविंग भी करते हो, ठीक है? एनर्जी एफिशिएंसी, आपको पता है कि कितना, अगर आपको पता है कि आपने अगर आपने डिमांड फोरकास्टिंग अगर प्रॉपर किया और आपको पता है कि किस गोडाउन में कितना सामान एक्चुअली रखना है, तो फिर आप फालतू के ना गोडाउन लोगे, तो गोडाउन फालतू नहीं लोगे तो रेंट का खर्चा बचेगा, गोडाउन फालतू नहीं है तो आपके बिजली बत्ती बचेंगे, तो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी बचेगी। तो इस तरह से करके आप काफी कॉस्ट कटिंग और कॉस्ट सेविंग कर सकते हो। दूसरा है रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन का मतलब होता है ना कि अब देखो भाई, कार्बन एमिशन हो रहा है तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कार्बन कैलकुलेशन कर दिया है। सबसे पहले कार्बन अकाउंटिंग कर दिया है, ठीक है, कि आप इतना अगर कार्बन एमिट करोगे तो आपका इतना पैसा लगेगा, ठीक है। मतलब आपको हर एक एमिशन के लिए आपको हर एक अकाउंट, मतलब कार्बन अकाउंटिंग जो आपका नंबर आ रहा है उसके लिए आपको प्राइस पे करना है। तो भाई उसका जो है वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ रेपुटेशन का भी डैमेज होगा कि भाई ये कंपनी तो इतना कार्बन, और आपको धीरे धीरे क्या करेंगे, स्टेक होल्डर्स जो है वो आपको कट डाउन कर देंगे, है ना। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एज, आप अपने कॉम्पिटिटर्स से, जैसे आप देखोगे मामा अर्थ, मामा अर्थ सबसे पहले क्या ऐड करता है, सबसे पहले किस चीज की प्रॉमिस करता है? वो प्रॉमिस करता है कि दे आर नॉट हार्मिंग एनी एनिमल्स, दे आर नॉट यूज्ड एनी मटेरियल्स दैट कैन हार्म द हार्म एंड डैमेज दिस एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग, है ना। तो इस तरह से करके आप कॉम्पिटिटिव एज भी ले सकते हो। तो कार्बन एमिशन को कम करना इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि ये आपको कॉस्ट सेविंग में भी हेल्प करेगा, रिस्क मिटिगेशन में भी, कॉम्पिटिटिव एज भी देगा, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मिलेगी, एक फ्यूचर, एक अच्छा फ्यूचर मिलेगा आने वाले जनरेशन को, है ना। नेक्स्ट इज, इस स्लाइड में आप देख सकते हो, आपको आंसर करना है कि हाउ कैन यू यूटिलाइज एनालिटिक्स टू डिटेक्ट एरिया, ओके, टू डिटेक्ट एरिया जिसमें कि आपको क्या करना है, सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस बढ़ानी है, किस एरिया में, किस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में, किस स्पेसिफिक लाइक लॉजिस्टिक के किस स्पेसिफिक एलिमेंट को आपको कट डाउन करना है या हटाना है या रिप्लेस करना है ना, कि आप जो है सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड्स मूव करो, आपका कार्बन फुटप्रिंट कम हो, है ना। तो सबसे पहली बात है कि डेटा एनालिटिक्स अगर आप यूज करोगे तो सबसे पहली बात ये है कि आप क्या करोगे, आप डेटा कलेक्ट कर पाओगे और डेटा को एनालाइज कर पाओगे। आप अगर डेटा कलेक्ट करते हो, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन में आपका ये व्हीकल यूज हुआ, इस व्हीकल में इतना इतना कार्बन एमिशन हुआ है। सिमिलरली अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हो, सिमिलरली अगर आप सारा डेटा कलेक्ट करते हो और उसको एनालाइज करते हो, तो 100% आपको जो है उस कलेक्शन और एनालिसिस के बाद आपको पता चल जाए कौन सा ऐसा हॉटस्पॉट एरिया है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है। क्या ट्रांसपोर्टेशन से हो रहा है या मैन्युफैक्चरिंग से, या आपको मशीन चेंज करने की जरूरत है ना। तो आप एरिया आइडेंटिफाई कर लोगे कि कहाँ से हो रहा है ना। तो फिर आप उसको फिर या तो कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे या तो फिर उसको कट डाउन करने का वे ढूंढोगे, है ना। दूसरा, अगर आप एनालिटिक्स यूज करते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप सिनेरियो मॉडलिंग कर सकते हो। मतलब आप एनालिटिक्स यूज करके आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज क्रिएट करके देख सकते हो कि अगर ये किया जाए, अगर हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं या इस तरह से मशीन यूज करते हैं, अगर तो फिर या फिर ई व्हीकल या कोई भी, मतलब जो आप अलग अलग सिनेरियोज क्रिएट करके देख सकते हो कि किसमें सबसे कम कार्बन एमिशन हो रहा है, एंड यू कैन हैव दैट गाइडलाइंस, राइट। अलग अलग सिनेरियोज का आपको गाइडलाइंस मिल सकता है और आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हो, राइट। उसके बाद है, अगर आप एनालिटिक्स यूज करते हो, आपको पता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स अगर यूज करते हो तो क्या होता है कि आप फ्यूचर एमिशन को आप फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकते हो। तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हो कि फ्यूचर एमिशंस कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर हमने इतना प्रोडक्ट बनाया और इस प्रोडक्ट में, एक प्रोडक्ट में इतना लग रहा है कार्बन एमिशन, तो इतने सारे प्रोडक्ट या इतने ब्रांचेस या इतना ट्रांसपोर्टेशन में कितना लगेगा। तो आप अकॉर्डिंगली प्लानिंग, गोल सेटिंग एंड एवरीथिंग कर सकते हो, है ना।
तो आप रियल टाइम डेटा प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के थ्रू रियल टाइम मॉनिटरिंग वगैरह करके कि हाँ भाई यहाँ पे इतना एमिशन हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आप उसको थोड़ा कंट्रोल और करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चौथा है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। कोलैबोरेशन का मतलब क्या है कि आप सप्लायर्स, पार्टनर्स, आपके जितने स्टेक होल्डर्स है ना, इवन कस्टमर से भी आप कोलैबोरेट करो और उनको इंस्ट्रक्शन, इवन कस्टमर्स को जैसे आप इंस्ट्रक्शन दो कि इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, ताकि इन्वायरमेंट को हार्म ना हो। सिमिलरली आप सप्लायर से कोलैबोरेट करो कि आप इस किस तरह से आप दोनों कोलैबोरेट करके मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर्स एंड ऑपरेटर्स ये कैसे मतलब इस कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कैसे अपना सकते हैं, ठीक है। कैसे पैकेजिंग में प्लास्टिक्स कम कर सकते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आप डेटा एनालिटिक्स यूज करके वो सारे एरियाज को डिटेक्ट कर सकते हो, स्पॉट कर सकते हो कि किस एरिया में, किस जगह पर ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस की जरूरत है, राइट। आर यू गेटिंग? ओके। So now the last part of the question was asking a case study of companies which are using these analytics to decrease the environmental impacts. Okay. So in my case studies, as always, I've used the Walmart. तो वॉलमार्ट का केस स्टडी अगर लेते हैं तो वॉलमार्ट इट ऑप्टिमाइजेज इट्स ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक ऑपरेशन को उन्होंने डेटा एनालिटिक्स यूज करके ऑप्टिमाइज किया हुआ है ताकि फ्यूल का कंजम्पशन कम हो, और फ्यूल का कंजम्पशन कम होगा तो एमिशन भी कम होगा, ठीक है। सो दे यूज द एनालाइजिंग टेक्निक्स ऑन दिस डिलीवरी रूटिंग में, व्हीकल एफिशिएंसी में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, and thus Walmart is significantly, it has decreased its carbon footprints, है ना। so this way you can just give examples. I have given 3 examples, you can just pick one or two. Okay, even one example will be enough. अगर एक example लेके आप थोड़ा बहुत एक paragraph लिख दोगे ना तो that's enough. Okay, next I have taken the example of IKEA, which is like it is using analytics to improve the energy efficiency and reduce its emission in the supply chain. So IKEA like इन्वेंट्री मैनेजमेंट वो बहुत प्रॉपर कर रहे हैं ताकि उनका वेयर हाउसेस का खर्चा एंड एनर्जी सेविंग जो है वो वहां पर हो सके, और दस दे कैन डिक्रीज द कार्बन एमिशन। सिमिलरली आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ यूनिलीवर। यूनिलीवर आपको पता ही है कि जो है वो एनालिटिक्स यूज करके अपना सस्टेनेबल सोर्सिंग प्रैक्टिसेस को कम कर रहा है, और सप्लायर परफॉर्मेंस एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स में एंड दस मतलब डिफॉरेस्टेशन वगैरह को वो थोड़ा ज्यादा ध्यान दे करके अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहा है ना, एफॉरेस्टेशन के टुवर्ड्स अपना पोटेंशियल यूज कर रहा है। ओके, so this way you can just give example of one to take a case study, one case study will be enough. Okay, then last you can just write down the conclusion that okay, there is a good role of analytics in managing the carbon footprint, and thus we should try to improve and implement the sustainable practices, try to collaborate with our suppliers and all the stakeholders. And here are the best examples of these companies which are using analytics in the sustainable supply chain practices. So this is what you have to like know from unit number 7, and this is how you present your answers. So this was the last video and this was the last practice question for our paper supply chain analytics. With this I have like completed my promise of providing you the practice questions from all the chapters of our paper supply chain analytics. Wish you very best, wish you all the best for your exams. Try writing your answers in these patterns, and I request you that these videos will actually be helpful for you. Please watch it 2 to 3 times. Try gaining all the potentials from it, like how the answer is being written, how the answer is being taken up, how we are taking one point at one time, right? Okay, so even if you have any query, I'm here. Write in the comment box. I'll be resolving this. Okay, I'll be resolving all your queries till your exams. Stay connected and watch all the videos, and you can comment there. Okay, and you can also hit the like button if you like this. And okay, wish you all the best. Thank you so much. Bye bye.